वेरी गुड आफ्टरनून पत्रकार प्रिय पत्रकार साथीगण। आज अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी बार प्रेस क्लब में एक बहुत ही विशेष और एक गंभीर मुद्दे जो हम लोगों ने थोड़ी दिन पहले उठाए हैं उसको फिर से एक बार हम लोग आपके समक्ष में पार्टी की तरफ से जो गतिविधि हो रही हैं और सरकार को हम लोग पूछ रहे हैं कि अरुणाचल जैसे बहुत ही एक बेहतरीन प्रदेश में जहां लोग बहुत ही शालीनता, बहुत ही भाईचारे और नेचर के साथ बहुत ही मिलनसार होते हुए हम लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्र में, जैसे हम बारंबार बता रहे हैं कि इलीगली जो फैक्ट्रीज जो चल रही हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसका कायदा कानून के हिसाब से, जिसको कानून के प्रतिक्रिया जो भी उसमें नियम नीति है उसे वंचित होते हुए ये लोग चला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ने पहली दफ़ा नहीं, ये हमारा दूसरा दफ़ा है, तो आज उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हमें थोड़ी बहुत निराश होता है जब हम लोग पूरे अरुणाचल के विषय में हम लोग जब बात करते हैं, उन्नति और प्रगति के बारे में जब हम बात करते हैं, कुछ हमारे मित्र जो है अनाप शनाप लिखते हैं, उनको भी हम लोग अपील करेंगे कि वे अश्लीलता को जानें और जो एडीपी पार्टी का अरुणाचल के लिए जो विशेष हम लोग काम कर रहे हैं उसका मंशा को आप टटोलें और आप इस प्रकार से प्रतिक्रिया दें। तो आज हम लोग प्रेस क्लब में दूसरी बार हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग आज हमारे विमेन प्रेसिडेंट अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम यायोम पांगू जी हमारे साथ हैं और उसके ठीक बगल में हमारा सचिव आदरणीय किपा नातोंग साहब है। और जैसे कि हम व्याख्या कर रहे हैं कि अरुणाचल में किस प्रकार का इलीगली जो आयरन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसके बारे में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारा विमेन प्रेसिडेंट पांगू जी आए और इसके बारे में अरुणाचल के उन तमाम लोगों को बताएं कि अरुणाचल में सरकार किस प्रकार से बारंबार हमारे शिकायत पर, हमारे गुहार पर आवाज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसके बारे में वे प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैडम। थैंक यू सर जी। तो थ्रू दिस मीडिया आई वुड लाइक टू सबमिट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट to the government of Arunachal Pradesh that some irregularities, frauds, corruption, and illegal activities doing around the several factories, namely MS Platinum Alloy Private Limited, which is at TP Balipung, West Kaming, SMS Smelter Limited, and MS Sri Salasar Industry at Lekki, which is at Papumpare, everyone know, MS Satyam Ispat Notice Limited, MS Satya Ratan Ispat, MS Sunshine Industries, MS Satyam Industry and Alloy, etc. at Bandadua Industry, State Papumpare, District Arunachal Pradesh, which is all run by the Ratan Sharma, Neeraj Sharma, his family and his association. And through this industry, the accumulation of black money by evading various forms of taxes and corruption for the last many years and taking advantage of lack of effective law enforcement authority in the state. Apart from this industry, they have running many lamb, coke, and bridge industry. To run this lamb, coke, bridge industry, they have to use the coal mining
But as per the Supreme Court rule, the coal mining has already banned. But still, if the coal mining is banned, how they use these industries? There is many coke lime industry, which is, I will mention the name, Satyam Coke, which is at Bandodua, Karsang Industry Private Limited, and Tangwang Coke Unit at Karsang, and PLG Udyog, and MN Acharya Associate, Bardumsa, MS Kokcheng Coke Coal Unit at Longtom, which is at Sanglang district of Arunachal Pradesh. Now, as per the Section 6 of Factory Act 1948, the occupier to open the industry, they have to submit factory plan to the State Labor Department before the expansion and construction of the factory. On being approved, the owner can apply for the factory license. But through our research, we have found that many factories had been running illegally for many years without applying for the registration, which is totally illegal, which is actually crime, and there is a punishment for that also. And as per Chapter 5, Section 4, Subclause 4, Subclause 16B of State Industrial and Investment Policy 2022 Amendment, a unit of employment, minimum 20% people of Arunachal Pradesh in managerial cadre, and minimum 30% of people of Arunachal in non-managerial cadre. But till now, not even a single person from the Arunachal Pradesh has been appointed, has been working in their factories, which is clear-cut violation of the Arunachal Pradesh Industrial Investment Policy 2021. Now, for the opening of the industries, any industries, the industrial must look the surrounding, the pollution control, whether it's affect the flora, fauna, or human being existence. But they didn't check anything. They didn't do anything as per the law. So that since from many years, many associations, many individuals has been raised question against the government, has been raised question against the companies, to the industries. But till now, no action has been taken by the government. Nothing has been taken. And in regarding to the corruption, I would like to mention one of the industry that is MS Smelter versus Commissioner of Central State and Texas, Guwahati. It has been revealed that MS Smelter NI 52A, Pare Village, Lekki, POPS, Naharlagan, Arunachal, which is situated Arunachal here in the Lekki, registered under Central Access Registration Number AABCN 71470XM001, is a manufacturer of magnesium, and they discharge their major portion of duty liabilities by utilizing caveat credit on inputs such as HSD band, rod, reject, MS lead, encoding, and many more, etc., etc. Received from the factories irregularities, let me mention the name, MS Satyam in Ispat, Bandodua, Papumpare, which is in Arunachal Pradesh, MS Satya Mega Sport, PBT, Ltd, Brihat, which is in Meghalaya, Sri Sai Rolling Mills, PBT, Brinihat, Meghalaya, which is in Meghalaya, Trisul He-Tech Industry, Village Norpong, which is also in Meghalaya, Sri Sanjit Ispat Limited, West Burgao, NS, which is at Guwahati. The above mentioned, the 5 factories are available exemption under the notification of
32/99 CE dated 1999, acting on an intelligence that MS Smelter Limited was availing irregular cabinet credit on the basis of bogus invoice of all the factories, and all the promoter, director, and the MS Smelter Ltd were director and major shareholder of these 5 factories, and they are misusing the benefit of the notification 32/1999 CE dated 8/7/1992, which is facilitated evasion of central excess duty by MS Smelter Limited. Now, we, the ADP group, with the ADP parties, submit representative before the government of Arunachal Pradesh. Our main motto, our main objective is to protect the right and privilege of our indigenous people, of our Arunachal Pradesh, and Plaura, Plauna, and forests of our state. So, therefore, I request the government, state government, to take immediate step to stop them to running the industry and establish an independent inquiry committee regarding the illegal corruption, fraud, and cheating going in the name of these various factories in the Arunachal Pradesh. Thank you. इसके साथ में मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ इस मुद्दे को लेके हम लोग ने हाल ही में आ चुके थे। उससे पहले आप लोग को भी पता है कि ये कोल माइनिंग का मुद्दा में लेके हम लोग काफ़ी पिछले 5-6 महीनों से हम लोग ने सरकार को हम लोग उसे भी इसके बारे में भी हम लोग ने बहुत काफ़ी मांग किए हैं, पर आज तक सरकार का तरफ से कुछ पॉजिटिव जो रिप्लाई जो आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी हमारा महिला प्रेसिडेंट ने जो कहा है, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है सीधा आप लोग को क्लियर पता होना चाहिए कि ये कोल माइनिंग से रिलेटेड है। नंबर 1, जबकि कोल माइनिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक में 2012 में 12-13 उस समय तक आपको इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करने का रोक लगाया। तो आज तक आप लोगों को पता है 10-15 साल, करीबन 10-15 साल हो चुके हैं। तो इस बीच में वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए आज ये इंडस्ट्री को, इसका जरिए इंडस्ट्री जो चल पा रहा है, दैट मीन्स इंडस्ट्री भी तो इलीगल है। तो ये हम लोग का कहना है। दूसरा ये है कि अभी आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत सा कम आदमी को पता है, जैसा कि स्टोन है। स्टोन एक है कि उसका कोरेज जो स्टोन है, जो उसको मिक्सअप करके जो स्टील बनाया जाता है, वो जो स्टोन है हमारा अरुणाचल प्रदेश में इतना अवेलेबल है। तो बाहर स्टेट से लाने का क्या मतलब है, ये भी है। ये इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें सीधा सा सवाल है कि सीधा सा दिखाई देता है कि इसमें टैक्स छुपाने का, टैक्स नहीं देने का अरुणाचल को, ये भी है। ऐसा छोटा चीज़ बहुत सा है, काफ़ी लंबे है बात, जो सारा बात को आज ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पर हम लोग ने सरकार को अभी जो हम लोग का जो ये मुद्दा है सरकार तक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए सरकार को दूसरी बात, लास्टली जो बात है ये है कि इंडस्ट्री जो है आपका 2004 से इस्टेब्लिश हुआ है, जबकि उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। फिर भी आपका 2011-12 तक चल चुका है।
तो सरकार को ये सवाल है कि इसको क्या एक्शन लिया जाएगा। ये दूसरा बात जो है, आज ये जो रजिस्ट्रेशन जो है आपका, जबकि रिसेंटली हुआ है 2012-13 में हुआ है इंडस्ट्री का, तो सारा का सारा देखिए पूरा स्टेट को गफला करके आज तक सरकार ने छुपा रस्तम करके रखा है। ये हमारा अरुणाचल का सारा समाज का जो परपाती है उसको छुप छुप के पीछे चोरी गोफ के जैसा पीछे पॉकेट में लगाया जैसा ऐसा काम करते आया। यहाँ में इतना करोड़ इन्वॉल्व है कि आप सोचकर भी आपको एकदम महसूस नहीं कर पाएगा, इतना तक हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ सिर्फ करोड़ नहीं है, बिलियन इन्वॉल्व है। तो इसमें सरकार का ही ये नेतृत्व में चलता है। जैसा अभी स्टील इंडस्ट्री है, जैसा आपका लिक्योर हो गया, सारा जनता को पता है। ये कहीं ना कहीं नहीं, ये सीधा सा ये सरकार का ही नेतृत्व में है और दूसरा कोई इसको, आम जनता कोई इसको पाल नहीं सकता है, कोई नेतृत्व में नहीं रख सकता है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी कभी होने नहीं देगा। ये हमारा फरफाती है, हमको ही चेक बैलेंस करना पड़ेगा। मैं सरकार से लास्टली हमारा अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का तरफ से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द, जो हम लोग ने हाल ही में जो हम लोग मांग रखा है, जैसा टैक्स रिवेन्यू होता है, इसको दिखाए, सही तरीका से दिखाए। ये टैक्स जो इतना सालों से कहा था कितना आया, उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में अगर इंडस्ट्री को आने वाला कल चलाता है तो हम लोग ने इंक्वायरी कमेटी गठन करने का हम लोग ने मांग रखा। अगर हम लोग को रिस्पॉन्सिबल नहीं लेके अगर ज़बरदस्ती अगर ये चीज़ को करते रहेगा, इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहेगा, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कर सकता है। और आगे फर्दर हम लोग बहुत कुछ वो हम लोग यहाँ नहीं बताएंगे, आगे और भी हम लोग शिकायत करेंगे सरकार को। ये हमारा एडीपी का तरफ से आज का यही हम लोग का कहना है। और दूसरा आप लोग पूछना है तो एक दो सवाल पूछ लीजिए। पोल्यूशन में भी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप लोग पोल्यूशन यहाँ में पोल्यूशन बोर्ड होता है, इनका क्या रोल है इसमें? इसमें देखिए पोल्यूशन हाल ही में हम दोनों, जैसा हमारा स्पोक पर्सन साहब है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है कि हम विजिट नहीं किया है, हम लोग कर चुका है। जैसा टीपी में है बालीपुर, वहाँ पे हम लोग ने कम समय देखा कि वहाँ में देखो आप लोग रियलिटी ग्राउंड को जाके भी देख सकता है, ना ही ड्रेनेज ठीक है, वह जनता के लिए बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आने का बहुत चांस है। जैसा मॉनसून डे होता है जब गर्म दिन आता है। दूसरा ये है पोल्यूशन, वहाँ का लोग भी कहना है कि पोल्यूशन का वजह से छोटा जो बच्चा होता है उन लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ सिर्फ नहीं है, यहाँ में भी है, बांडरदेवा में भी है, हर जगह में है। इसलिए पोल्यूशन का बारे बोलने से देखिए हमको भी कुछ इन्फेक्शन हुआ था, हम पूरा 4 दिन जैसा मेडिसिन खा के बैठा। तो ये है हर जगह में जैसा लिखी है, वहाँ पे भी अगल बगल में आप कोई भी पब्लिक को पूछ के देखिए, इफेक्ट नहीं हुआ तो आप हम लोग को एडीपी को आप लोग बता सकते। आज का डेट में तो मीडिया है, छुपाने का जगह नहीं है। इसीलिए जबकि इलीगल जब एक्टिविटीज़ करता है, चला रहा है, तो जनता को भी परेशान करना और पोल्यूशन का वजह से सब बीमार फैलता है, ये रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? ये है नहीं पोल्यूशन वो तो आप इफेक्ट का बारे, पोल्यूशन बोर्ड जो उसको चलाने के लिए पोल्यूशन बोर्ड का परमिशन एक तो होना पड़ता है। तो जो इंडस्ट्री में जो पोल्यूशन होता है उसको परमिशन एक तो मांगना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, पोल्यूशन बोर्ड से। तो इसका पोल्यूशन बोर्ड का क्या रिस्पॉन्स है, आप लोग पूछा है कि नहीं पूछा? नहीं, पोल्यूशन बोर्ड का भी हम लोग ने काफ़ी इंडस्ट्री ऑफिसर लोगों से बात हुआ है। उन लोग कोई भी आज तक
डिटेली जब हम लोग जो सवाल करता है, आज तक डिटेल हम लोग को कोई भी ऐसा पॉजिटिवली बताने वाला कोई नहीं है। हम लोग आरटीआई के द्वारा से भी हम लोग ने बहुत काफ़ी डॉक्यूमेंट भी लिया और बहुत सा क्वेश्चन आस्क भी किया, लेकिन आज तक जो पोल्यूशन जो बोर्ड है, कमिटी, ऐसा कोई भी नहीं कि आज तक ऑफिसर ही नहीं जानता है कि ये पोल्यूशन क्या चीज़ है, तो हम लोग को क्या जवाब देगा, ये भी है। इसके बारे में हम लोग पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, हम उनके पास गए थे और हम लोग ने इसके लिए विस्तार से हम लोग ने बातें किया और हम लोग ने ये चर्चा किया कि फैक्ट्री जहाँ जहाँ है अरुणाचल प्रदेश में विशेष करके, तो उसको जो है नियम को ताक में रखते हुए ये फैक्ट्री चला रही हैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग ने जब उनका पॉल्यूशन बोर्ड को उनके जो कार्यरत जो ऑफिसरगण हैं उनसे हम जब बात किया तो उन्होंने बताया कि इसके लिए वे लोग ज़रूर गंभीरता से उनको ले रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय हो गया है और जिस प्रकार से वे लोग बता रहे हैं कि बहुत गंभीरता से इस पॉल्यूशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, अभी तक उनके लिए कोई मालूमात नहीं है। और जैसे कि हमारा सचिव ने कहा, हम लोग ने कई ऐसे क्षेत्र में, ऐसा फैक्ट्री में गए, हमने देखा वहाँ पे जिस प्रकार से जो नियम है फैक्ट्रीज़ का, वो बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है, ऐसा है। एडीपी पार्टी इंक्लूडिंग ऑल द अरुणाचल प्रदेश ना, हम सब डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अरुणाचल में इंडस्ट्री भी आए ताकि युवा लोग को नौकरी मिले, लेकिन इंडस्ट्री आए लेकिन उसका नॉर्म्स का साथ, उसका रूल एंड रेगुलेशन का साथ आए। हम लोग का यहाँ का यूथ लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, साथ में हम लोग का यहाँ का अरुणाचल का एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट ना करे, यहाँ का फॉरेस्ट, फ्लोरा फौना, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस को खराब इफेक्ट ना करे। साथ साथ आप अगर इंडस्ट्री लाते हैं तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स होता है, आप उस सब को फॉलो करना है। लेकिन इसमें देखा गया है, ये जितना मैंने इंडस्ट्री मेंशन किया है, उसने आज तक कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया है, कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है। इंडस्ट्री पोल्यूशन, अभी आप बोल रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल को लेके, जब पोल्यूशन कंट्रोल का ऑफिसर को कुछ मालूम नहीं है, अगर उसको कुछ मालूम नहीं है तो इट इज़ क्लियर कट ना कि उसने कुछ पोल्यूशन कंट्रोल को लेके कुछ दिया नहीं होगा उन लोग को सर्टिफिकेट। अगर आप इंडस्ट्री खोलता है, कुछ भी आप यहाँ काम करता है, आप टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दीजिए। अब इतना लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहा है विदाउट पेइंग प्रॉपर टैक्स। इसलिए अरुणाचल में इंडस्ट्री खोलना या कहीं भी एरिया में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी स्टेट में कोई भी इंडस्ट्री खोलता है तो विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या फिर स्टेट ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी इंसान उसमें इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है। कुछ भी इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। या में इतना इरेगुलरिटीज है, गवर्नमेंट प्रॉपर परमिशन नहीं दिया है तो इतना कैसे उन लोग इंडस्ट्री खोल रहे हैं, इतना टैक्सेस का इन्वेजन कैसे हो रहा है, टैक्सेस का घोटाला कैसे हो रहा है। और ये स्टील इंडस्ट्री, कोई भी कोक ब्रिज ये सब खोलने के लिए तो आपको तो कोयला का ज़रूरत है, जबकि कोयला को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, तो आपका इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, आपका फैक्ट्री कैसे चल रहा है। इसलिए ये बहुत एक आई ओपनिंग मैटर है। इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्शन लेना है, अरुणाचल के पीपल के लिए, अरुणाचल के स्टेट के लिए।